Now let us start relation between linear acceleration and angular acceleration. Linear acceleration is denoted by a and angular acceleration is denoted by alpha. In this case, we have to find the relation a is equal to r alpha. A is called as linear acceleration, alpha is called as angular acceleration, and r is called as the radius of circle. When now we have to discuss the angular acceleration of a body performing circular motion, that time we have to consider non-uniform circular motion. Why we have to consider non-uniform circular motion? Because if we consider uniform circular motion, then in UCM, omega, called as angular velocity, this angular velocity is constant. Angular velocity is constant in magnitude as well as direction. With the help of definition of angular acceleration is the rate of change of angular velocity with respect to time. Angular acceleration is the rate of change of angular velocity with respect to time. But omega is constant, angular velocity is constant. This is the derivative form of constant value of omega, and derivative of constant is 0. That means alpha is equal to 0. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा का वैल्यू 0 होता है. And here you have to show a is equal to alpha. That means alpha should be present. अल्फा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अल्फा 0 हो रहा है जब हम यूसीएम ले रहे हैं. So in this case we have to consider the non-uniform circular motion. We have to consider a body performing non-UCM, that means non-uniform circular motion. If it is non-uniform circular motion, then omega is not constant. अगर ये non-UCM है, तो non-UCM में omega constant नहीं होता. If it is not constant, that means we can say that it is the variable. It is the variable. मतलब ये change होने वाला वैल्यू है. तो आप अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी यहाँ पर लिखते हो, तो ओमेगा जो है वो तो वेरिएबल है. दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0. तो नॉन यूसीएम में अल्फा 0 नहीं होता, यूसीएम में अल्फा 0 होता है. तो इसलिए हम लोग ये केस नहीं लेंगे. जब हमें a इज इक्वल टू आर अल्फा प्रूफ करना होगा तो उस वक्त हम यूसीएम का केस नहीं ले सकते, बिकॉज इन यूसीएम अल्फा इज इक्वल टू 0. सो हियर वी हैव टू कंसीडर नॉन यूसीएम condition, non-UCM case in which alpha is not equal to 0. So consider a body performing non-uniform circular motion. Now next is that तो यहां पर हम लोग एक सर्कल कंसीडर करेंगे. This is the anti-clockwise direction. So consider a body performing non-UCM in anti-clockwise direction. Let us consider O is the center, A is the initial position of body, R is the radius, and this body moves from A to B. A is the initial position, B is the final position, ये भी radius R हो गया. यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा डेल्टा थीटा. It is the
angular displacement. It is called as the infinitesimal angular displacement. जो अल्फा है वो हम लोग सेंटर पर एक्सप्लेन करते हैं, सेंटर पर ऑब्जर्व करते हैं. इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर. प्लेन ऑफ फिगर भी परपेंडिकुलर होता है. एंड व्हाट इज द ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन. दिस लीनियर एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस. ये रेडियस के अलोंग होता है, ये रेडियस के अलोंग होता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इट इज सिंपली लीनियर एक्सेलरेशन. Now in this case, according to the definition of linear acceleration, we can write linear acceleration is the rate of change of linear velocity with respect to time. So linear acceleration is denoted by a, rate of change of linear velocity with respect to time, and it is dv upon dt. Here no need to take limit. हम लोग यहाँ पर स्मॉल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं. मैंने जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए शो करने के लिए बनाया. मैं यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v बता रहा हूँ. यहीं पर ओमेगा भी रहेगा, इसी के डायरेक्शन में ओमेगा भी रहेगा. ये सब डायरेक्शन बताने के लिए किया मैंने. मुझे यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ पर स्मॉल टाइमिंग कंसिडर करूँ. सो इन दिस केस नो नीड ऑफ दिस डायग्राम. जस्ट मुझे यहाँ पर शो करना था लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और लीनियर एक्सेलरेशन बताना था कि डायग्राम में किस प्रकार से होता है. नो नीड हियर. सो a is equal to dv upon dt, but you know that v is equal to r omega and this is the relation between linear velocity and angular velocity. तो ये फार्मूला बन जाएगा a is equal to d upon dt and this is r omega. r को आप लोग बाहर ले लो तो आपको मिलेगा यहाँ पे a is equal to r बाहर आ गया, आपको मिलेगा d omega upon dt, where this d omega is the rate of change of angular velocity with respect to time and it is called as angular acceleration. So d omega upon dt के जगह पर अल्फा आएगा, आपको मिल जाएगा a is equal to r alpha. This is the relation between linear acceleration and angular acceleration. In vector form, we can write vector A is equal to vector alpha cross product vector R. This is the vector form. In this case, this A is called as the linear acceleration and this linear acceleration is of two types. Denoted by AR or it is also called as ACP and denoted by AT. What is AR? This AR is called as radial acceleration. This ACP is called as centripetal acceleration. ये दोनों एक ही है. रेडियस के नाम में होता है इसलिए रेडियल कहते हैं और वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है इसलिए उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं. अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम है. व्हाट अबाउट AT? AT is called as tangential acceleration
इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमने अभी जो फार्मूला प्रूफ किया है A इज इक्वल टू आर अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इट इज AT इज इक्वल टू आर अल्फा। इसको AT से डिनोट किया जा रहा है। मतलब ये टेंजेंशियल हुआ, मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, लिनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, इट इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। उसी प्रकार से AT जो है वो भी टेंजेंशियल होगा, सर्कुलर पाथ को टेंजेंशियल होगा। बट व्हाट अबाउट AR? AR इज अलोंग द रेडियस। मतलब अगर हम यहाँ पर ये सर्कल बनाते हैं, बॉडी का पोजीशन यहाँ लेते हैं, ये सेंटर O है और ये रेडियस R है, तो AR का डायरेक्शन इधर होगा। AR is along the radius. This AR is also called as centripetal acceleration. ये रेडियल ही सेंट्रीपिटल होता है और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये AR हो गया या फिर इसको ACP लिखो। What about this AT? AT is the tangential acceleration. तो linear velocity का डायरेक्शन ही होता है। This is the direction of linear velocity. So definitely AT का भी डायरेक्शन वही रहेगा। AT का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो यहां पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ये दोनों एक्सेलरेशन AR और AT, मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो मैं इस डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो AR और AT जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन? तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा जब आप O से लेकर इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करोगे। दिस लाइन इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय A. So how to find A? By using the Pythagoras theorem, A is equal to, मतलब that means A square is equal to AR square plus AT square. So A is equal to under root AR square plus AT square. तो हमने जो लीनियर एक्सेलरेशन लिया वो एक्चुअली यहाँ पर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो गया एंड इट इज अलोंग द रेडियस। तो ये वाला जो लाइन रहेगा, जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें जो 90 डिग्री एंगल, मतलब यहाँ पर हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसके सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, तो ऑब्वियसली ये साइड मतलब ये जो A होगा ये यहाँ पर रिजल्टेंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा A is equal to √AR square plus AT square। जहां हम यूसीएम की बात करते हैं तो यूसीएम में अल्फा का वैल्यू 0, अल्फा का वैल्यू 0, तो AT का वैल्यू 0। तो यूसीएम में ये जो रिजल्टेंट है वो AR के बराबर होगा। हाउ इट इज? इन यूसीएम अल्फा इज इक्वल टू 0, सो AT इज इक्वल टू 0। तो AT अगर 0 होगा तो अंडर रूट AR स्क्वायर रहेगा। अंडर रूट AR स्क्वायर मतलब यहाँ पर AR होगा तो आपको A इज इक्वल टू AR मिल जाएगा। एंड हेंस इन यूसीएम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन is equal to the radial acceleration or it is also called as centripetal acceleration। तो हमने जो फार्मूला फाइंड आउट किया A is equal to R alpha, वो एक्चुअली फार्मूला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, AT is equal to R alpha, and this is the relation between linear acceleration, it is also called as tangential acceleration, and the angular acceleration, that means AT is equal to R alpha। Thank you।